Hello students of class 4th, I am going to teach you science chapter 6, our teeth and microbes. चलिए बच्चों, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं साइंस की चैप्टर 6, our teeth and microwaves. Imagine yourself without teeth. It would be very difficult to eat food without the teeth help you to break food into small pieces so that you can swallow and digest better. Teeth also help you to speak clearly. We probably got our first tooth when we are about 6 months old. By the age of 3, a child has 20 teeth. These are milk teeth or temporary teeth. Between the age of 6 to 12, the milk teeth fall out and new ones grow at their place. These are permanent teeth. This new set has 32 teeth, 16 in the lower jaw and 16 in the upper. हमारे दांत और सूक्ष्म जीव. बिना दांतों के खुद की कल्पना करें. बिना दांत के भोजन करना बहुत मुश्किल होगा, जिससे आप भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें ताकि आप निगल सकें और बेहतर तरीके से पचा सकें. दांत आपको स्पष्ट रूप से बोलने में भी मदद करते हैं. जब हम लगभग 6 महीने के थे तब हमें शायद अपना पहला दांत मिला था. 3 साल की उम्र तक एक बच्चे के 20 दांत हो जाते हैं. उन्हें दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं. 6 से 12 साल की उम्र में दूध के दांत झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए दांत निकल आते हैं. ये स्थायी हैं दांत. इस नए सेट में 32 दांत हैं, 16 निचले जबड़े में और 16 ऊपर के जबड़े में. स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ. ए टूथ इज बेसिकली मेड अप of two parts, the crown and the root. The region between the crown and the root is called the neck. The crown and the neck are seen outside the gum. You can see them when somebody opens the mouth. The root is the part of the tooth inside the gum and tooth is secured by the root. एक दांत की संरचना. दांत मूल रूप से 2 भागों में बना होता है. मुकुट और जड़ के बीच के क्षेत्र को गर्दन कहा जाता है. बंदूक के बाहर ताज और गर्दन दिखाई दे रही है. जब कोई मुंह खोलता है तो आप उन्हें देख सकते हैं. जड़ हिस्सा है मसूड़े के अंदर के दांत और दांत को जड़ से सुरक्षित किया जाता है. 3 layers of a tooth. The outer layer of a tooth is very hard and is called enamel. It protects the tooth from the wear and tear of chewing. Below it lies the dentine. This is also quite hard. It supports the enamel of the teeth. It is a yellow and bone-like material. Inside the dentine is the plump. This is the soft part and has blood vessels and nerves in it. The nerves are connected to the gum through a hole in the root. The tooth receives nourishment from the plump and it also sends signals to the brain. एक दांत की 3 परतें. दांत की बाहरी परत बहुत सख्त होती है और इसे एनेमल कहते हैं. ये दांतों को चबाने के टूट-फूट से बचाता है. इसके नीचे डेंटाइन है. ये भी काफ़ी कठिन है. ये दांतों पर एनेमल का समर्थन करता है. यह एक पीले और हड्डी जैसी सामग्री है. डेंटाइन के अंदर गूदा होता है. यह नरम भाग है और इसमें रक्त वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ होती हैं. जड़ में एक छेद के माध्यम से नसें मसूड़े में जुड़ी रहती हैं. दांत को गूदे से पोषण मिलता है और यह दांत को संकेत भी भेजता है. दिमाग. टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ए परमानेंट सेट. इंसिजर्स, कैनीस और पेरिमोल्स एंड मोरल्स. द फ्रंट 4 teeth on each jaw are called incisors. They are flat and have a sharp edge. They are used to bite or cut food into small pieces. On the both sides of the incisors on each jaw are sharp and pointed teeth. They are called canines. They are used for tearing. These are 4 in numbers. The 2 teeth next to the canines on each side of the jaw are called premolars. There are 8 premolars in all, 4 in each jaw. The last 3 teeth on both sides of jaws are the molars. Molars are broad and flat. They are used to crush and grind
food into a fine paste. The third pair of molars is also known as wisdom teeth. दांतों के प्रकार। स्थायी सेट में 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, कैनाइन, प्रीमियर और दाढ़। प्रत्येक जबड़े पर आगे के 4 दांत को वृत्तांक कहते हैं। ये सपाट हैं और एक तेज धार है। भोजन को काटने व छोटे टुकड़ों में काटने के लिए उपयोग किया जाता है। कृंतकों के दोनों किनारों पर प्रत्येक जबड़े पर नुकीले दांत होते हैं। इन्हें कैनाइन कहा जाता है। इनका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। वे संख्या में 4 हैं। जबड़े की प्रत्येक तरफ कुत्ते के बगल में 2 दांत प्रीमोलर्स कहलाते हैं। सभी में 8 प्रीमोलर्स होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। अंतिम 3 दांत जबड़े की दाढ़ है। दाढ़ चौड़ी और सपाट होती है। वे भी और भोजन को पीस कर एक महीन पेस्ट बना देते हैं। दाढ़ की तीसरी जोड़ी को अकल दाढ़ के रूप में भी जाना जाता है। टूथ डिके। When you eat, small bite of food can get stuck between your teeth. Bites of food sticking to the teeth can cause the growth of bacteria. In the presence of bacteria and germs in the mouth, the stuck food gets spoiled and form holes or cavities of the tooth enamel. When the cavity reaches the nerves within the plum, it causes pain. Over time, teeth also get covered with sticky yellow layer called plaque. So we must keep our mouth clean and eat food that will make our teeth stronger. दांत की सड़न। जब आप खाते हैं तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े आपके दांतों के बीच फंस सकते हैं। दांतों में चिपके भोजन के टुकड़े बैक्टीरिया के विकास का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरिया की उपस्थिति में और मुंह में कीटाणु अटका हुआ भोजन खराब हो जाता है। उस गूदे दांत के एनेमल और छेद या छिद्र में फंस जाता है। जब गूदा गुहा के भीतर की तक पहुंच जाता है, इससे दर्द होता है और ऊपर समय के साथ दांत भी चिपचिपी पीली परत से ढक जाते हैं, जिसे प्लाक कहा जाता है। इसलिए हमें अपने मुंह को साफ रखना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमारे दांतों को मजबूत बनाएं। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। इट इज़ important to take care of our permanent teeth as they will not be replaced by another set. This is possible by following certain rules. Brush your teeth twice a day. This will help remove all food particles that are get stuck while eating food. हमारे दांतों की देखभाल। हमारे स्थायी दांतों की देखभाल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। एक और सेट कुछ नियमों का पालन करके संभव है। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। यह उन सभी खाद्य कणों को हटाने में मदद करेगा जो खाना खाते समय फंस जाते हैं। Rinse your mouth with water after every meal. It helps to remove the food left between the teeth. Do not eat too much sweet and chocolates. They stick to the teeth and cause tooth decay. Clean your tongue every time you brush your teeth. This will prevent germs from growing inside the mouth. Floss your teeth. Flossing is to clean between the teeth with a thread. It removes the food stuck between our teeth that cannot be removed by brushing. Drink plenty of milk. It has calcium, which makes teeth strong. Eat fibrous food. It helps to exercise your teeth and gums. Visit the dentist regularly. Once in 6 months for a checkup. प्रत्येक भोजन के बाद अपने मुंह को पानी से धोएं। ये दांतों के बीच बचे हुए भोजन को निकालने में मदद करता है। ज़्यादा मीठा और चॉकलेट न खाएं, वे दांतों में चिपक जाते हैं और दांत खराब हो जाते हैं। हर बार जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं तो अपनी जीभ को भी साफ करें। ये मुंह के अंदर कीटाणुओं को बढ़ने से रोकेगा। अपने दांत सोने से पहले साफ करो। फ्लॉसिंग एक धागे से दांतों के बीच साफ करता है। ये हमारे दांतों के बीच फंसे भोजन को हटा देता है, जिसे ब्रश करने से नहीं हटाया जा सकता है। खूब दूध पिएं, इसमें कैल्शियम होता है जो दांतों को मजबूत बनाता है। रेशेदार भोजन करें, ये आपके दांतों और मसूड़ों को व्यायाम करने से मदद करता है। चेकअप के लिए नियमित रूप से 6 महीने में एक बार दंत चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। Microbes are very small organisms
which cannot be seen through a naked eye. They can only be seen under a microscope. Some microbes are useful to humans while some are harmful. Microbes are found everywhere. Disease-causing microbes are called germs. The four main kinds of microbes are. माइक्रोब्स ये बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। वे केवल एक माइक्रोस्कोप के तहत देखे जा सकते हैं। कुछ रोगाणु मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को रोगाणु कहा जाता है। 4 मुख्य प्रकार के रोगाणु हैं। पहला है बैक्टीरिया। दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। दे आर सिंगल सील्ड ऑर्गेनिज्म। They are found in different shapes and size. They cause disease like typhoid, tuberculosis and food poisoning. पहला है बैक्टीरिया। ये बहुत छोटे जीव होते हैं। ये एकल कोशिका वाले जीव हैं। वे विभिन्न आकृतियों और आकारों में पाए जाते हैं। वे टाइफाइड, तपेदिक और खाद्य विषाक्तता जैसी बीमारियों के कारण बनते हैं। दूसरा है वायरसेस। These are smaller than bacteria. They cannot be seen under a normal microscope. They cause disease like flu, mumps and measles. वायरसेस ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। इन्हें सामान्य के तहत नहीं देखा जा सकता है। ये सूक्ष्मदर्शी जैसे फ्लू, कंठमाला और खसरा जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। फंगी These grow in decaying matter. They cause disease like ringworm, athlete's foot. ये सड़ने वाले पदार्थ में बढ़ते हैं। वे दाद और जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। एथलीट का पैर। चौथा है प्रोटोजोआ। दीज आर ऑल्सो सिंगल सील्ड ऑर्गेनिज्म। दे आर बिगर दैन बैक्टीरिया, कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, डाइसेंट्री। प्रोटोजोआ ये भी एक कोशिकीय जीव है। वे बैक्टीरिया से बड़े होते हैं जो मलेरिया, डेंगू और पेचिस जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। यूजेज ऑफ माइक्रोब्स। सम यूजेज ऑफ माइक्रोब्स आर फॉलोइंग। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। सम फंगी कॉल्ड यीस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम बैक्टीरिया क्रिएट विटामिन्स इन ह्यूमन बॉडी। सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स। सूक्ष्म जीवों का उपयोग। रोगाणुओं के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। कुछ बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। पीस्ट नामक कुछ कवक नरम ब्रेड को सेकने में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया मृत पौधों और जानवरों के शैव में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया मानव शरीर में विटामिन बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया जानवरों में रफेज पचाते हैं।